Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about endocrine system of man. Endocrine system of man is consisting of almost 20 different types of ductless glands or endocrine glands which are located in different parts of the body. One important endocrine gland is the hypothalamus, and hypothalamus is also a part of the forebrain in the limbic system. We discussed it in detail in your nervous system. But in the endocrine system, it also functions as a control center because it produces certain important hormones which are responsible for the secretion of hormones from the pituitary gland. And those, and also some of the hormones they are responsible for inhibiting the hormones which are released from the pituitary gland. Therefore, the role of the hypothalamus is like a regulatory center of the endocrine gland, of the endocrine system. Hypothalamus के अलावा the second important gland which is classically termed the master gland of the endocrine system is the pituitary gland. Pituitary gland produces many hormones. Some of them they are called tropins, whose role is to affect and to stimulate other endocrine glands of the body to release their respective hormones. While the posterior lobe of the pituitary gland is responsible to store the oxytocin and antidiuretic hormone, which is actually secreted and produced by the hypothalamus, but are stored here for a while, and according to the need, they are released after receiving message from the hypothalamus. Similarly, in the neck region, we have thyroid gland. Thyroid gland is producing different types of hormones like calcitonin and thyroxine and triiodothyronine, which are responsible for controlling different body functions and metabolism. Parathyroid glands, they are 4 in number and they are located inside the lobes of the thyroid gland, and they are playing important role in the metabolism of calcium, etc. Similarly, we also have on the dorsal side of the hypothalamus pineal gland attached by means of a stalk to the brain stem. The pineal gland produces melatonin, and it is also responsible for biological clocks, sleep-wake cycles, and other moods, etc. Like the appetite, moods, etc. They are controlled by the hormones. Melatonin, which is secreted by the pineal gland, and it also is responsible to produce serotonin. These are the hormones and also the neurotransmitter which we have mentioned in the topic related to the nervous system synapse. हमारा हार्ट जो है उसका बुनियादी काम जो है वो तो ब्लड पंपिंग है, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ सेल जो है they produce different types of hormones like natriuretic peptides which are responsible for controlling the blood pressure. किडनी हमारा बेसिकली फिल्टरिंग organ है, एक्सक्रीटरी organ है, लेकिन साथ साथ इसमें से मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं लाइक रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रियोल. इसी तरह हमारा एडिपोज टिश्यू भी एंडोक्राइन टिश्यू के तौर पर रोल प्ले करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने डाइजेशन में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वहाँ से सिक्रीट होते हैं सिक्रेटिन ड्यूटेनम और इंटेस्टाइन से, जबकि गैस्ट्रिन सिक्रीट होता है आपके स्टमक की वाल से. तो ये भी यहाँ पर डाइजेशन के फंक्शन के अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इनकी ये सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होकर कुछ फंक्शंस कंट्रोल करते हैं. पेंक्रियाज जो है हमारा डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है. मेन हिस्सा इसका एक्सोक्राइन है, लेकिन इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ सेल्स है विच आर कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, और इसके मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बीटा सेल्स और अल्फा सेल वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन. ये आगे हमने डिटेल से फिर पढ़ना भी है. इस तरह जो है हमारा एड्रिनल किडनी है उसके साथ ऊपर की तरफ अटैच होता है एक ग्लैंड जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड. इसका एक मिडुलर रीजन होता है, मिडुला होता है, एड्रिनल मिडुला, और दूसरा है एड्रिनल कॉर्टेक्स. दोनों बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, कई किस्म के, जिसका काम जिस्म के अंदर साल्ट मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करना है और इसके अलावा स्ट्रेस सिचुएशन को भी कंट्रोल करना है वगैरह वगैरह. इसी तरह हमारे गोनेड जो है वो बेसिकली तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, लेकिन साथ साथ वो हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं. लाइक टेस्टिस जो है वो मेल में टेस्टोस्टेरोन और दूसरे एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं, जबकि फीमेल में ओवरी
एस्ट्रोजन और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और दूसरे हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसका फीमेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। हाइपोथैलेमस का रोल जो है हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, but it's also controlling the release of the hormones from the pituitary gland, and is also working like an endocrine because it produces different types of hormones which we call as factors. Some of the factors are releasing factors, some of them are inhibitory. The thalamus receives sensory information, relays some of the to the hypothalamus. Hypothalamus monitors the body for temperature, pH, and other conditions. Hypothalamus signals pituitary gland if conditions need to be corrected. मतलब यहाँ ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज देती है ताकि वो वहाँ से अपने खास किस्म के हार्मोन रिलीज करे। ये डायग्राम उस दिन भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाइपोथैलेमस से दो किस्म के फैक्टर्स, ये जो ग्रीन में दिखाए गए हैं दे आर रिलीजिंग फैक्टर्स, जो रेड में यहाँ दिखाए गए हैं दे आर इनहिबिटरी फैक्टर्स। इन सब का जो है ना असर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर होता है कि जब रिलीज फैक्टर्स जाते हैं तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने किस्म के हार्मोन सीक्रेट करती है, मसलन एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फैक्टर्स जो है दे आर कॉल्ड रिलीज फैक्टर्स बिकॉज पिट्यूटरी से ये हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर ये हार्मोन जो है इनको भी ट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, यानी ट्रॉपिक हार्मोन या ट्रोपिन्स, क्योंकि इनका रोल जो है वो बॉडी में डायरेक्ट नहीं है, ये प्राइमरी हार्मोन नहीं है बल्कि ट्रॉपिक हार्मोन है, क्योंकि ये जाकर दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जैसे एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है ACTH, फिर एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा। इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, टारगेट इसका है थायराइड ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन जैसे थायरोक्सिन, T3 और T4 खारिज करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कलेक्टिवली कहते हैं gonadotropins, लेकिन they are released under the message of GnRH, gonadotropin releasing hormone, तब जाकर ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे और फिर इनका टारगेट होता है टेस्टिस या फीमेल में ओवरीज। इसी तरह प्रोलैक्टिन, ये डोपामीन जो है इसका दूसरा नाम PIH यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन भी है। ये आकर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से इनहिबिट करती है द प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, नहीं प्रोलैक्टिन, जिसका काम बेसिकली फिर मेमोरी ग्लैंड पर होता है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती है। और ग्रोथ हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, बट इट इज रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, और ग्रोथ हार्मोन जो है वो फिर लिवर पर और बोन्स पर और मसल्स पर इफेक्ट करती है ग्रोथ को फैसिलिटेट करने में। हाइपोथैलेमस की जो मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं उनका एक छोटा सा लिस्ट है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी TRH, it stimulates the release of TSH from the pituitary gland. Corticotropin releasing hormone यानी CRH, it stimulates the release of adrenocorticotropic hormone from the adrenal gland. Gonadotropin releasing hormone GnRH, it stimulates the release of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone from the anterior pituitary gland. Growth hormone releasing hormone यानी GHRH, it stimulates the release of growth hormone from the pituitary gland. Growth hormone inhibiting hormone GHIH, whose second name is also somatostatin, it inhibits release of growth hormone from the, so ये inhibitory hormone है। इसी तरह prolactin releasing hormone PRH stimulates the release of prolactin, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर मैं लिखना भूल गया PIH, prolactin inhibitory hormone, so it inhibits the release of the PRH, the release of prolactin from the anterior pituitary gland, जो दूसरा मैं बता रहा हूँ। और ये वाला जो है ये स्टिमुलेट करता है यानी ये रिलीज करता है, तो इनहिबिटरी फैक्टर इसको इनहिबिट भी करता है। इसी तरह हाइपोथैलेमस का जो पोस्टीरियर लोब है वो हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि बेसिकली बनते यहाँ है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचकर सिर्फ स्टोर होते हैं, रिजर्व रहते हैं, और जब जरूरत हो, जब हाइपोथैलेमस से नर्व इंपल्स जाएगा तब जाकर वहां से रिलीज होंगे। तो वो जो प्राइमरी हार्मोन्स है वो एक तो है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जिसको हम कॉमनली कहते हैं ADH, या उसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, और ये वाटर बैलेंस को
अगर ब्लड वॉल्यूम कहीं कम हो जाए जख्म में या कि इंजरी में, तो उस वक्त ये हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। खासकर डिहाइड्रेशन के वक्त जब जिस्म में पानी की कमी हो तो ये हार्मोन ज़्यादा खारिज होता है, ताकि बॉडी के अंदर पानी की मकदार को कंजर्व रख सके और पानी का लॉस कम से कम हो। ऑक्सीटोसिन जो है ये भी पोस्टीरियर ग्लैंड में स्टोर रहता है और ये खास औकात में काम आता है। जैसे ये बच्चे के पैदाइश के वक्त यानी लेबर के टाइम में, पार्चुरेशन में ये काम आता है। ये जो है ना, दे काज वायलेंट कंट्रैक्शंस ऑफ द यूटेरस वॉल्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। और इसके अलावा जो है, व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड बाय द सकलिंग ऑफ द बेबी, so it is also responsible for the milk ejection from the mammary glands when they are stimulated. Milk production इसका काम नहीं है। Milk production is the role of the prolactin hormone which comes from the anterior pituitary gland. लेकिन milk ejection जो है, it is the role of the oxytocin. मेल में इसका भी कुछ रोल है और वो बिहेवियर से मुतालिक है। This is a pituitary gland is classically called the master gland, especially इसका जो anterior lobe है, that signals other glands to produce their hormones when needed. The anterior lobe of the pituitary receives signals from the hypothalamus and responds by sending out the appropriate hormone to other endocrine glands. The posterior pituitary receives oxytocin or antidiuretic hormone from the hypothalamus, relays them to the body as necessary. जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। यहाँ पर फिर वही हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का रोल आपस में ताल्लुक बताया गया है। इसको साइंटिस्ट कहते हैं एक्सिस, मतलब कि एच पी और दूसरे मुख्तलिफ ग्लैंड्स के साथ उसका एक्सिस, मसलन एच पी ए हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल। इस तरह एच पी टी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड। क्या मतलब है कि हाइपोथैलेमस से कि जो ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल है जिनके डेंड्राइट्स यहाँ पर हाइपोथैलेमस में और सेल बॉडी भी इधर मौजूद है, इनका एक्सान इधर आकर इन ब्लड कैपिलरीज ऑफ द पिट्यूटरी के साथ साइनाइड्स बनाती है, इधर अपने हार्मोन सीक्रेट करती है। ये हार्मोन यहाँ पर मौजूद जो ग्लैंडुलर सेल है उनको स्टिमुलेट करती है और वहां से फिर बनते हैं ये रेड कलर में जो यहाँ पर दिखाए गए हैं इनके वो ट्रापिक किस्म के या ट्रापिन हार्मोन, जो ब्लड स्ट्रीम में दोबारा शामिल होकर टारगेट एड्रिनल ग्लैंड्स को जाकर स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो अपने किस्म के हार्मोन रिलीज करे। मसलन टी ये एच पी ए एक्सेस का मतलब क्या होगा कि हाइपोथैलेमस से ये रिलीज फैक्टर रिलीज होंगे, जैसे सी आर एच रिलीज होगा, ये यहाँ पर से सिक्रेट करेगा एसीटीएच एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर इसका टारगेट होगा एड्रिनल ग्लैंड जहाँ पर से कार्टेक्स से रिलीज होंगे कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजेंस एक्सेट्रा। इसी तरह जो हाइपोथैलेमस के कुछ सेल्स जो है, दे आर न्यूरोसेक्रेटरी, दे सिंथेसाइज सम हार्मोन्स, they send them down through the infundibulum and through capillaries and according to the need are released into the bloodstream in the pituitary gland and then into the bloodstream. तो ये जो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स है वो सिंथेसाइज इधर नहीं होते, वो तो सिंथेसाइज इधर हाइपोथैलेमस में होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिर्फ स्टोरेज के लिए आते हैं और जरूरत के मुताबिक फिर रिलीज होते हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। एक तो रिलीज फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करती हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उनका टारगेट साइट होता है। दूसरी तरफ इनके जो है कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऐसे हार्मोन्स भी बनाते हैं जिनका रोल प्राइमरी है, किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड पर असर नहीं करती बल्कि ब्लड स्ट्रीम में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू दाखिल होकर किडनीज को या जो है अगर ऑक्सीटोसिन है तो यूटेरस वाल वगैरह को इफेक्ट करती है या मेमोरी ग्लैंड को इफेक्ट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स है वो ये है, ये खासकर वो है जो कि इंटीरियर लोब के है। मसलन हाइपोथैलेमस के ये फैक्टर रिलीज होंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकलेगा और ये इसके फंक्शन है। फंक्शन ये इसके नहीं है बल्कि इसी के हैं, लेकिन ये हार्मोन उस वक्त रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच या जिसका दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिन भी है, ये रिलीज उस वक्त होगा जब यहाँ पर से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से आएगा। इसी तरह थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर टीआरएफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा है पिट्यूटरी ग्लैंड से और इसका काम फिर आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है टीआरएफ, इसका टारगेट साइट होता है एड्रिनो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड और वहां से सीक्रेट करता है एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी एसीटीएच और इसका काम फिर एड्रिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करना होता है ताकि वो अपने हार्मोन जो मुख्तलिफ किस्म के हैं वो सीक्रेट करे। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होकर
आता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जहाँ से रिलीज होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH, और इसका काम है स्टिमुलेट्स एग मैच्योरेशन इन द ओवरी एंड रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तो मेल में भी इसका रोल है अलग किस्म का, और फीमेल में इसका ये रोल है। इसी तरह यही हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके वहां से LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी खारिज करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम मेल में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी ICSH भी है, क्योंकि यहाँ पर इनका रोल अलग किस्म का है। ल्यूटिनाइजेशन खास करती है, ये तो फीमेल का पार्ट है, यानी कार्पस ल्यूटियम बनता है ओवरी में आफ्टर द रिलीज ऑफ एग। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर तो चूंकि कार्पस ल्यूटियम तो मेल में है नहीं, तो ये हार्मोन मेल में क्या करता है, ये टेस्टिस को टारगेट करती है और वहाँ के जो इंटरस्टिशियल सेल्स है उनसे टेस्टोस्टेरोन को खारिज करती है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर एक है, और इसी तरह प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर दूसरा है। तो ये वाला अगर रिलीज होगा तो इट विल रिस्पांसिबल टू फॉर द रिलीज ऑफ लेक्टोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, और अगर इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज होगा तो फिर ये वाला हार्मोन खारिज नहीं होगा। और इस हार्मोन का काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के इस हार्मोन का स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड्स टू फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ये बाकी चीज़ें तो इसके मैंने पहले भी बताई है, इसके डायग्राम को आप देख लें। ये पोस्टीरियर लोब है, ये इंटीरियर लोब है। इंटीरियर लोब से निकलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजिंग फैक्टर एंड इनहिबिटरी फैक्टर ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसका टारगेट साइट है एड्रिनल ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन, जिसका टारगेट साइट मसल्स और लिवर और बोन्स वगैरह है, जहाँ पर ग्रोथ को एक्टिवेट करती है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मीडियन लोब से बेसिकली खारिज होता है। इसका काम है स्किन के अंदर पिगमेंट्स यानी मेलानिन एटसेट्रा प्रोड्यूस करना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका टारगेट साइट है थायराइड ग्लैंड, ताकि वो अपने हार्मोन कैल्सिटोनिन और T3 और T4 खारिज करे। गोनेडोट्रोपिन्स जो है उनका इफेक्ट होता है जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इवन LTH यानी लैक्टोट्रोपिक हार्मोन तीसरा। ये तीनों कलेक्टिवली कहलाते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। इनका रोल होता है बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर असर अंदाज होना, जैसे टेस्टिस पर और ओवरीज पर या मेमरी ग्लैंड्स पर। प्रोलैक्टिन जो है जैसे इधर दिखाया गया है, प्रोलैक्टिन का मेमरी ग्लैंड्स पर इफेक्ट होता है, जहाँ पर वो क्या करता है मिल्क प्रोडक्शन और मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में इसका रोल है। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे दो किस्म के हार्मोन निकलते हैं। ADH जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए रिस्पांसिबल है, किडनी को इफेक्ट करती है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो है वो मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन भी करती है, और साथ अगर टाइम ऑफ बर्थ हो बच्चे का 9 मंथ ऑफ gestation पीरियड के बाद, तो उधर यूट्रस वाल पर असरअंदाज होकर उसकी वायोलेंट कंट्रैक्शन करती है ताकि पर्चुरेशन हो, बच्चे की पैदाइश हो। सो ये होगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का एक ब्रीफ स्केच। इसे यहाँ पर फिर दिखाया गया है कि ब्रेन का ये जो हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर जरा डिटेल में है। ये वाला आप देखें इन्फेंटुबुलम है, ये है इंटीरियर लोब, ये है पोस्टीरियर लोब, और ये दरमियान वाला है इसका मीडियन लोब। इंटीरियर लोब जो है इससे निकलने वाले हार्मोन्स का पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। इससे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो खारिज होती है क्या, ग्रोथ हार्मोन। इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स, मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स। इट आल्सो enhances protein synthesis, decreases the use of glucose and promotes fat destruction. इसी हार्मोन के अगर यंग कंडीशन में ओवर सिक्रीशन होगी, दैट विल लीड टू जेजेंटिज्म, बहुत बड़े कद का इंसान बनेगा, पूरी बॉडी ग्रो करेगी। अगर इसी यंग कंडीशन में अंडर सिक्रीशन होगी, दैट विल लीड टू शॉर्ट स्टैचर ह्यूमन व्हिच इज कॉल्ड dwarfism। लेकिन एडल्ट कंडीशन में भी कभी कभी इसका इम्बैलेंस हो सकता है। मसलन अगर ओवर सिक्रीशन होगी इसकी एडल्ट कंडीशन में, तो फिर पूरी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, बल्कि कुछ खास ऑर्गन्स बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, जैसे हाथों पर, या किसी का स्कल, या किसी का जा बोन, या किसी के पाव वगैरह बहुत ज्यादा साइज में बड़ा होता है और बाकी बॉडी नॉर्मल होती है। इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली ये उस वक्त होती है जब ओवर सिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन की इन द एडल्ट कंडीशन। अच्छा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरा जो हार्मोन खारिज होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन यानी ACTH या एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी इसको कहते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एड्रिनल कॉर्टेक्स फिर अपने हार्मोन खारिज करेगा। लेकिन ये हार्मोन जो खारिज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसका काम ये होता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स वगैरह को डेवलप करे।
इसके अलावा जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH, इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड का आगे हमने रोल बड़ा डिटेल से पढ़ना है। अगर इसी हार्मोन की ओवर सिक्रीशन होगी दैट लीड्स टू हाइपरथायराइडिज्म, और अगर अंडर सिक्रीशन होगी दैट लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो गोनेडोट्रोपिन्स निकलते हैं उनके में से एक का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और it stimulates the growth of ovarian follicles in the female and the production of sperms in the male। ये टेस्टिस में से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्पर्म के यहाँ डायग्राम दिखाया गया है। दे आर प्रोड्यूस अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल में जो है ये ओवरी है, ये वाली ओवरी है, ये वो है ओविडक्ट है, उसमें ये एक रिलीज होती है खास वक्त में ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्शन में मैंने इसकी पूरी तफसील पढ़नी है कि ये क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें भी इन हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। खासकर इब्तिदाई दौर में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को जो कि ग्रेफियन फॉलिकल्स कहलाती है उसको मैच्योर करने में हेल्प करती है, ताकि वो मैच्योर होकर एग बनाए, और वो एग बाद में ओव्यूलेशन के अमल के जरिए रिलीज होकर यूट्रस में आए ताकि इम्प्लांटेशन हो या फर्टिलाइजेशन हो। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो ईच मंथ जो एग रिलीज होने के बाद जो रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द फॉलिकल होता है वो एक येलो कलरिंग स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। ये वाला है, ये है ग्रेफियन फॉलिकल। आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद ओव्यूलेशन के अमल में इससे एक रिलीज होता है। जो रिमेनिंग टिश्यू है ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल इट मैच्योर्स इनटू कार्पस ल्यूटियम, ये जर्द कलर का ये जो ग्लैंड है, और ये फिर बनाती है एक और किस्म के हार्मोन्स, और इसका फिर रिप्रोडक्शन में और किस्म का रोल है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है ग्रेफियन फॉलिकल को मैच्योर कराना ताकि वो एग बनाए, ये है इसका काम। और ये जो कार्पस ल्यूटियम कैसे बनता है इसका हम नेक्स्ट में जिक्र करेंगे। Luteinizing hormone. So it is also a gonadotropic hormone, and it stimulates the development of the corpus luteum in the female ovarian follicles and the production of testosterone in the male. Therefore, also called interstitial cell stimulating hormone ICSH in the males. ये जो अब पहले डायग्राम में भी मैंने दिखाया कि ग्रेफियन फॉलिकल्स ये आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते रहते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, ये होते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसके नतीजे में ये एक तो ओव्यूलेशन हो जाती है, एक रिलीज हो जाता है। लेकिन फॉलिकल जो है उसमें कई बहुत सारे सेल्स होते हैं, सब एक नहीं होता। तो जो रिमेनिंग सेल है दे बिकम नॉन सेलुलर एंड टर्न इनटू अ येलोइश कलरिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। तो ये कार्पस ल्यूटियम किसके मैसेज के अंदर बनता है फीमेल में? अंडर द इंस्ट्रक्शंस कमिंग फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड नेम्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH। और ये LH बनने के बाद फिर इसका काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना, यानी प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना। ठीक है ना? ये जो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द ओवरी है वो तो एस्ट्रोजन खारिज करती है, लेकिन कार्पस ल्यूटियम खारिज करती है प्रोजेस्टेरोन। लेकिन प्रोजेस्टेरोन तो उस वक्त खारिज होगा जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा, और कार्पस ल्यूटियम बनता किस वक्त है? जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड फेज में ओव्यूलेशन के बाद आकर इसको एक्टिवेट करती हैं, और फिर ये कार्पस ल्यूटियम जो है काफी दिनों तक रहता है, 13-14 दिन तक, और प्रोजेस्टेरोन खारिज करता है। इसका अपना रोल हमने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ना है, और आगे गोनेड्स को जब हम पढ़ेंगे एज एंडोक्राइन ग्लैंड, इनका रोल हम जरा डिटेल से भी उधर बता देंगे। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक तीसरा जो गोनाडोट्रोपिन खारिज होता है दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। इसका इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स एंड मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द सगलिंग मोशन ऑफ द बेबी स्टिमुलेट्स द प्रोलैक्टिन सेक्रीशन। तो इसका काम जो है मिल्क इंजेक्शन नहीं है, बल्कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और उसके बाद इसमें मिल्क की प्रोडक्शन। इट इज द रोल ऑफ PRL यानी प्रोलैक्टिन, या जिसका दूसरा नाम जो है वो लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन भी है, यानी LTH लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन, या ये नाम भी है, दोनों नाम है इसके। अच्छा, ये तो हो गया आपका इंटीरियर लोब। इससे आपने देखा कि कितने किस्म के हार्मोन निकले, ग्रोथ हार्मोन हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हुआ, लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन हुआ, और इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन। उसके बाद आपका जो मीडियन लोब है वो छोटा सा है, लेकिन इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। It has melanocyte stimulating hormone यानी MSH. It regulates skin pigmentation.
स्किन के मेलानोसाइट्स को ये स्टिमुलेट करती है जहाँ से मेलानिन सिक्रेट होता है एंड promotes the deposit of melanin in the skin after exposure to sunlight. तो मेलानिन हमारे स्किन का जो नॉर्मल कलर है या पिगमेंटेशन है उसके लिए ज़रूरी है और ये उस वक्त सिंथेसाइज होता है जब मीडियन लोब से MSH आ जाए। पोस्टीरियर जो लोब है उससे सिक्रीट होती है दो किस्म के हार्मोन। वो उस वक्त वो सिर्फ रिलीज होती है इधर से, सिक्रीट या बने तो वो हाइपोथैलेमस में होती है, यहाँ पर आकर स्टोर रहते हैं, जब ज़रूरत हो हाइपोथैलेमस से स्टिमुलस आए तो फिर इधर से ये रिलीज होती है। दो किस्म के हार्मोन है, एक का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH, जिसका दूसरा नाम जो है वेसोप्रेसिन भी है। इट स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स और इसमें अगर इम्बैलेंस होगा हाइपोसिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन कैन रिजल्ट इन डायबिटीज इंसिपिडस, यानी पेशाब बार बार आएगा क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी और तरस बहुत ज्यादा लगेगा। दूसरा हार्मोन जो इधर से निकलता है, एक तो ये ADH हुआ और इसका किडनी टारगेट साइड है जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड को वैसे दिखाया तो गया है कि जो साल्ट मेटाबॉलिज्म है दैट इज उसका जो इफेक्ट रीनल ट्यूब्यूल के जो क्या होता है एसेंडिंग लूप ऑफ इनले होता है उस पर इफेक्ट एल्डोस्टेरोन का होता है, लेकिन जो आपके कलेक्टिंग डक्ट्स है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उस पर असर होता है ADH का, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब हो अंडर द कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन। उसके अलावा पोस्टीरियर लोब से खारिज होता है ऑक्सीटोसिन। इट स्टिमुलेट्स द यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर, delivery and parturition. It also stimulates the mammary glands to release milk. Over secretion may lead to uterus rupture. इतना violent contraction होगी कि उससे uterus जख्मी भी हो सकता है, और under secretion may cause problem in the normal labor process, यानी बच्चे की पैदाइश में मुश्किल होगी। अच्छा, ये पीनियल ग्लैंड जो है आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन खारिज होता है और मेलेटोनिन कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंटल लाइटिंग to various parts of the body, has some effect on sleep and wake cycle, not totally but some effect, and other biological events connected to them, such as lower production of gastric secretion at night. यानी मतलब है कि इसका ताल्लुक ज़्यादातर आपके जो डायर्नल साइकिल्स है जिसको हम बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं उसमें मेलेटोनिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ये सिक्रेट होता है आपके पेनियल ग्लैंड से। इसके अलावा इधर से सेरोटोनिन भी खारिज होता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर दैट रेगुलेट्स द इंटेस्टिनल मूवमेंट्स and affects the appetite, mood, sleep, anger, and metabolism. So I think it is sufficient for today. We will talk about the thyroid gland inshallah in our next lecture. So thank you very much. If there is any question, you can ask them in our next live session. Because of the interruption times and again in our previous session, I have recorded this for your consult. So also relate it to your contents of the book. And if there is any question which has not been answered properly, you can ask in our next session. Thank you very much. Allah Hafiz.